السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Over to Zarina. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2، سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، the cow۔ آیتیں ہوں گی 186 to 187 انشاءاللہ۔ اوور ٹو باجی۔ انشاءاللہ آپ لوگ پارہ کھول لیجئے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186 سے تلاوت ہوگی، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی میں پلے کر دوں کیا؟ ہاں زرینہ تم پلے کرتی ہو۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے رمضان اور روزے سے متعلق آیتیں. الحمدللہ. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا، اور رمضان کے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں، اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہم نے پڑھی. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے لوگو آسانی کرو، اے لوگو آسانی کرو، سختی نہ کرو، تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ. یہ دونوں اپوزٹس ہیں، لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، 3 times. کیا فرمایا؟ کہ اے لوگو آسانی کرو، سختی نہ کرو، تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ. حدیث ہوگا. ایک اور حدیث میں ملتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو جب یمن کی طرف بھیجا تبلیغ کے لیے، یمن کی طرف ٹو اسپریڈ دا ورڈ آف اسلام، تو فرمایا تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا. لکھ لیجیے، تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا. کیونکہ اللہ کا دین آسانیوں والا دین ہے. الحمدللہ. اور کچھ حدیثیں ہماری باقی تھی اباؤٹ سحری اور افطار. انشاءاللہ پہلے وہ کر لیتے ہیں، پھر آج کی آیتوں کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے اسکرین پر ہے. کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سحری کے وقت کی دعا کیا ہے. روزہ رکھنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. کل کے اس لیے کہ ابھی وہ اٹ از اے پارٹ آف دا نائٹ، تو آپ اپنی زبان میں بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اسے اپنی زبان سے اس طرح پڑھنا کمپلسری نہیں ہے. ہم اپنی زبان سے بھی کہہ سکتے، اپنے دل میں بھی نیت کر سکتے کہ اللہ میں یہ رمضان کا روزہ رکھ رہی ہوں، اسے تو آسان فرما اور قبول فرما. ٹھیک ہے. اور افطاری کی نیت بھی آپ سب جانتے ہیں. افطاری کے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی ہم کو؟
किसी को याद है तो पढ़ के सुनाओ, मैं लगाती हूँ तब तक स्क्रीन पर। देखिए, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोजा इफ्तार करो तो इफ्तार के बाद ये इरशाद फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ्तार के बाद, अल्लाहुम्मा लकसुमतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अल्लाह, लकसुमतु तेरे लिए रोजा रखा मैंने, व अला रिज़्किका अफ्तरतु और ऊपर रिज़्क के तेरे, अफ्तरतु क्या क्या माने हुए और भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाली जो है ये दुआ हमें इफ्तार के बाद पढ़नी। तो फिर इफ्तार से पहले क्या पढ़ना है? सबसे सिंपल है कि इफ्तार से पहले हम बिस्मिल्लाह कहें, और ये वाली हदीस भी मिलती है सुनन अबू दाऊद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबज़्ज़मा ज़हबज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरुकु वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह। ज़हबज़्ज़मा यानी प्यास खत्म हो गई और रगे तर हो गई और सवाब पक्का हो गया अगर अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अजर पक्का हो गया। तो ये दुआ भी क्या है? खाने पीने के बाद की दुआ है। तो फिर हम बिस्मिल्लाह कहकर इफ्तारी करें। और वो हदीस भी हम पढ़ चुके हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार के बारे में क्या फरमाया, सॉरी, रोजे के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू उमामा रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। देखिए उन्होंने क्या पूछा, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखो, उसके बराबर कोई और अमल नहीं। मैंने फिर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई और अमल भी बताइए। आपने फरमाया, रोजा रखो, उसके बराबर कोई अमल नहीं है। सुभान अल्लाह। ये सुनन निसाई की रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली हदीस भी देख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान कयामत के दिन बंदे मोमिन के लिए शिफाअत करेंगे। रोजा अर्ज करेगा, ऐ मेरे अल्लाह, दिन के वक्त मैंने इसको खाने और शहवत से रोके रखा, फिर इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने रात को इसे जगाए रखा, फिर इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। फिर दोनों की शफाअत कबूल कर ली जाएगी। सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना है। कितना है? 10 से 700 गुना। यानी हर नेकी जो हम करते हैं इस पर अजर कितना है? मिनिमम 10, और उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, 70, 700, 7000 एज पर द क्वालिटी। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मजीद इरशाद है, बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी वजह से छोड़ देता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोजेदार की मुंह की बू
اللہ کے नज़दीक मुश्क से भी ज्यादा पाकीज़ा है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आयत पर। आयत नंबर 186। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा सअलक, व और, इज़ा जब, सअलक जब सवाल करे आपसे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सवाल करे आपसे। कौन फरमा रहा है ये? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ पर कहाँ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इस आयत में? बताओ। कौन बताएगा? इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहाँ है? Who will tell me? आफरा बताओ बेटा। इबादी ना बाजी, इबादी। ए नहीं मेरे नहीं बंदे। नहीं, दैट्स रॉन्ग आंसर। और रॉन्ग आंसर देने में कोई हर्ज नहीं, इससे पता चलता है हमारी मिस्टेक कहाँ है। सलमा आप बताइए इस आयत में। का जो है ना बाजी, काफ जबर का, वो वेरी गुड, वेरी रसूल गुड, यू आर राइट। यस, तो अभी आप लोग नोट कीजिए। देखिए हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक एक हुर्फ पर गौर करें। वो का मतलब है और, इज़ा जब, सअलक, सअल में सवाल वर्ड है, जब सवाल करे। क जो है ना सअलक, वो काफ पर जबर क, उसको सर्कल कीजिए, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आपसे सवाल करते हैं ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सवाल करते हैं? इबादी, मेरे बंदे। इबादी, मेरे बंदे। तो अन्नी, मेरे बारे में। क्या सवाल करते हैं? मेरे बारे में, अल्लाह के बारे में। फिर इन्नी, बेशक मैं, करीब, बेशक मैं बहुत करीब हूँ, आई एम वेरी क्लोज। उजीबू, मैं जवाब देता हूँ। उजीबू में जवाब वर्ड मिला आपको। देखिए सअल में सवाल था, उजीबू में जवाब है, तो क्वेश्चन एंड आंसर दोनों मिल गया। उजीबू, मैं जवाब देता हूँ। कौन फरमा रहे? अल्लाह ताला। किसका जवाब देता हूँ? दाअवत दाई, पुकार का। दावत में दुआ वर्ड है, दावत वर्ड है, तो दावत और दुआ दोनों भी क्या होता है? पुकार, कॉल। किसकी पुकार का? अद्दाई, पुकारने वाले की। जो पुकारता है, जो दुआ करता है, उसको दाई कहते हैं। इज़ा दाआनी, जब वो पुकारे मुझे। मुझे कहाँ मिला आपको? दाआनी में। नून के नीचे जेर है ना, तो वो हो गया मुझे। दाआनी, वो पुकारे मुझे। जैसे इबादी में दाल के नीचे जेर था, तो वो हो गया मेरे बंदे। अन्नी, नून के नीचे जेर, मेरे बारे में। फइन्नी, फिर बेशक मैं, नून के नीचे जेर। तो आज आपने ग्रामर का एक पॉइंट सीख लिया कि जब नीचे जेर होता है तो वो मेरे लिए हो जाता है, मेरे या मैं। ठीक है, इन द फर्स्ट पर्सन। फिर लाम पर जज़म, चाहिए कि, फिर चाहिए कि। यस्तजीबूली, फिर चाहिए कि वो जवाब दे, लब्बैक कहे। ली, मेरे लिए। फिर से आया, देखिए लाम या जेर, ली, मेरे लिए। वो और लाम पर जज़म, चाहिए कि,
ہونا یہ چاہیے کہ یؤمنو وہ ایمان لائے بی بایا زیر بی مجھ پر، پھر سے آیا بایا زیر بی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائے، رشد پالے، so that they may be guided rightly. بہت ہی بیوٹیفل دعا ہے، اور اس ناٹ دعا، بہت ہی بیوٹیفل آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحابہ اکرام پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا، کچھ گاؤں کے لوگ، گاؤں والے، ان کو عرابی کہا جاتا ہے، دور دراز کے کوئی رورل پیپل آتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچن کرتے تھے اسلام کے بارے میں. تو انہوں نے پوچھا، گاؤں والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کیا ہمارا رب قریب ہے؟ از ہی کلوز؟ اگر وہ قریب ہے تو ہم اس سے نا چھپ کے بات کریں گے، دھیری چھوٹی آواز میں بات کریں گے، ان دا لو پچ. اور اگر ہمارا رب بہت دور ہے، اللہ دور ہے، تو ہم اس سے اونچی اونچی آوازوں سے پکاریں گے. تو آپ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ ہمارا اللہ ہے کہاں؟ تو اس کویشچن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب وہ خاموش ہو جاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل امین کے ذریعے وحی نازل کر کے جواب دے دیتے، اور پھر وہ جواب ہی قرآن پاک میں موجود ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کیا وہ قریب ہے، دور ہے، فَإِنِّي قریب، تو میں تو بہت قریب ہوں، آئی ایم ویری کلوز، انڈیڈ میں بالکل قریب ہوں، اتنے نزدیک، شہرک سے بھی قریب. یہ جو ہماری جگلر وین ہوتی ہے ہماری گردن میں، which is the main source of our life، کہ جیسے بکرے کی گردن کاٹی جاتی ہے ذبح کرتے وقت، تو جو مین اس کی رگ ہوتی ہے نا، وہ رگ کاٹ دو تو اس کی زندگی ختم. وہ کتنے قریب ہوتی ہے نا بالکل اس کے گلے میں، ویسے ہی ہمارے گلے میں بھی ہوتی ہے، اور اس سے بھی قریب ہے اللہ ہمارے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الدائی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، تو میں اسے اس کے دعا کا جواب دیتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں اس کے دعا کا، اس کے پکار کا، اس کی بات کا. ہاؤ سویٹ! اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دعا کو رسپونڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. کسی کی کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی کہ جس پر اللہ تعالیٰ رسپونڈ نہ کرے. ہر ایک دعا اللہ کے پاس قبول کی جاتی ہے. لیکن کیسے قبول کی جاتی ہے؟ اس کی 3 شرطیں ہیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا شرط ہے؟ پھر چاہیے کہ وہ لبیک کہے، میرا بندہ وہ جواب دے میرا، یعنی میری ہر بات مانے. کیا ہے پہلی شرط اللہ کی؟ کہ میرا بندہ میری ہر بات مانے، نمبر 1. نمبر 2، وہ ایمان لائے مجھ پر، یعنی وہ بھروسہ رکھے مجھ پر، توکل کرے، مایوس نہ ہو، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پالے. الحمدللہ. اب یہ ہوا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کسی پہاڑی پر سے گزر رہے تھے. تو وہ ہر اونچی اونچی پہاڑی پر چڑھتے اور زور زور سے چلا کر کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو. ہیو مرسی اپون یور سیلف. تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے ہو،
बल्कि जिसे तुम पुकारते हो अल्लाह को, वो तो तुमसे तुम्हारी सवारियों की गर्दन से भी ज्यादा करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अल्लाह तुम्हारे इतने करीब है, तुम्हें उसे चिल्ला चिल्ला कर पुकारने की जरूरत नहीं। एक हदीस कुदसी मिलती है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? गौर से सुनिए, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा मेरे साथ, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा अकीदा रखता है, जैसा गुमान रखता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ मांगता है, जब वो मुझसे दुआ मांगता है, मैं उसके साथ ही होता हूँ। जब वो मुझसे दुआ मांगता है, मैं उसके साथ ही होता हूँ। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या पता चला? अल्लाह ताला कहाँ है? हमारे बिल्कुल करीब है। एक और हदीस लिख लीजिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है, और ये इतनी अच्छी हदीस है कि हम सब खुश हो जाएंगे इस हदीस को सुनकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर, बंदा जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगता है, तो वो अरहमुर राहिमीन, तो वो अरहमुर राहिमीन उसके हाथों को, उसके हाथों को खाली फेरते हुए शर्माता है। तो वो अरहमुर राहिमीन उसके हाथों को खाली फेरते हुए शर्माता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसे कौन रिपीट करेगा? बाजी, यस। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, बंदा जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगता है, तो वो अरहमर राहिमीन उसके हाथों को खाली फेरते हुए शर्माता है। हाउ स्वीट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी कोई भी दुआ रद्द नहीं हो सकती अनलेस वो दुआ जो है या तो किसी गुनाह के काम की हो या किसी हराम काम की हो। इसके अलावा हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। फिर हम कहेंगे कि हमारी हर दुआ तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, तो ये क्यों नहीं होती? ये देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातों में से एक बात जरूर अता फरमाता है। अल्लाह 3 बातों में से एक बात जरूर अता फरमाता है। ये लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला 3 बातों में से एक बात जरूर अता फरमाता है। नंबर वन, या तो उसकी दुआ उसी वक्त कबूल फरमा देता है, या तो उसकी दुआ उसी वक्त कंप्लीट दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 2, या तो उसे जखीरा करके रख देता है, यानी जमा कर लेता है अपने पास, या तो उसे जखीरा करके अपने पास जमा कर लेता है, सेफ कर लेता है। और नंबर 2 आगे है, जखीरा करके जमा कर लेता है और आखिरत में अता करेगा। और नंबर 3, या तो उसकी दुआ की वजह से, या तो उसकी दुआ की वजह से कोई आने वाली बला या मुसीबत को टाल देता है, या तो उसके दुआ की वजह से उस पर आने वाली कोई बला या मुसीबत टाल देता है।
सुभान अल्लाह। तो साहबा इकराम ने ये सुनकर क्या फरमाया, फरमाया फिर हम तो बहुत ज्यादा दुआ मांगेंगे, अगर हर दुआ कबूल होगी तो हम तो बहुत ज्यादा दुआ मांगेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पास भी कोई कमी नहीं है, जितना चाहो मांगो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझ में आई आपको दुआ की तीनों पॉइंट्स? कौन इसको डिस्क्राइब करेगा क्विकली? बाजी मैं रिपीट करूं? हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बातों में से एक बात जरूर अता फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। पहला, या तो उसकी दुआ उसी वक्त कबूल फरमाता है, यानी इमीडिएटली दुआ कबूल हो जाती है। दूसरा, या तो उसे ज़ाखिरा जमा करके रख लेता है और आखिरत में अता करता है। जखीरा, जखीरा जखीरा। यानी सेफ। हाँ, तो यानी उसका अजर उसको आखिरत में मिलता है। सेकंड, और थर्ड है, या तो उसकी दुआ की वजह से कोई आने वाली बला या मुसीबत को टाल देता है, यानी फ्यूचर में कोई आने वाली बला हो तो उसे टाल देता है। बाजी we can't hear you. एक और हदीस है स्क्रीन पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ मुखुल इबादा, इसका मतलब है दुआ इबादत का मगज है, दुआ इबादत का मगज है। Alhamdulillah, that means it is the head of ibadat. That means the topmost ibadat is dua. Topmost ibadat is dua. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सोचेंगे कि हम रमजान की आयतें पढ़ रहे थे, दुआ की आयतें, रोजे की आयतें पढ़ रहे थे, और बीच में ये दुआ की आयत कैसे आ गई? तो ये इसलिए कि जब हम रोजा रखते हैं और अल्लाह ताला को राजी करते हैं और फिर जब इफ्तार होती है तो इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ रद्द नहीं होती, रोजेदार की दुआ बिल्कुल रद्द नहीं होती। इसलिए हमको एनकरेज करने के लिए दुआ की आयत आई कि जब तुम रोजा रखो और इफ्तारी करो तो तुम्हारा ध्यान वो तुम्हारे रूह अफ़ज़ा और समोसा और पकोड़े पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारा ख्याल ये हो कि मैं इस वक्त अल्लाह से ज्यादा दुआएं करूं ताकि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। बिकॉज देयर इज नो वेल, हमारे और अल्लाह के बीच इफ्तार के वक्त कोई पर्दा नहीं होता और वो दुआ बेशक पूरी कबूल हो जाती है। ये वाली हदीस लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 1, आदिल बादशाह। आदिल बादशाह, आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला बादशाह, अ जस्ट किंग। नंबर 2, रोजेदार। नंबर 2, रोजेदार। और नंबर 3, मजलूम। नंबर 3, मजलूम। मजलूम का मतलब क्या होता है? वो जिस पर जुल्म किया जाता हो। मजलूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो, चाहे देर से ही क्यों ना हो। तो मजलूम यानी किसी को भी हम किसी पर जुल्म ना करें, इसलिए कि अगर हमने किया तो फिर अगर वो बद्दुआ दे तो वो बद्दुआ से बच नहीं सकते। अस्तगफिरुल्लाह। फिर अल्लाह ताला एक हदीस में फरमाते हैं और मुझे बहुत क्यूट लगती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक तेरा काम है दुआ करना। छोटी सी हदीस है, लिख लीजिए। एक तेरा काम है दुआ करना और मेरा काम है कबूल करना। हाउ स्वीट। एक तेरा काम है दुआ करना और मेरा काम है कबूल करना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तीन लोगों की दुआ कबूल नहीं की जाती, ये भी लिख लीजिए, तीन लोगों की दुआ कबूल नहीं की जाती। नंबर वन जल्दबाज, जल्दबाज। नंबर 2 गाफिल दिल से मांगी हुई दुआ, गाफिल दिल से मांगी हुई दुआ। दैट मीन्स तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या मांग रहे हो, जस्ट तोते की तरह एक दुआ रट दी जो हम लोगों को याद हो गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन्नार। तो गाफिल दिल से मांगी हुई दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 3 हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। और एक फोर्थ एडिशन कर लीजिए, मायूस, मायूस दिल की दुआ भी कबूल नहीं होती। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अभी हमने पढ़े ना कि एक काम तेरा है ए बंदे की तू दुआ मांग, और एक काम मेरा है कि मैं उसे कबूल करूं। तो अल्लाह को तो बहुत पसंद है कि हम उससे मांगे, अगर हम नहीं मांगते तो वो नाराज हो जाता है। कितना अच्छा रब है हमारा। और जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और वो हमारी दुआ कबूल करता है, तो क्या हमें उसे लौटाना पड़ता है? डू वी हैव टू रिटर्न इट? जैसे दुनिया में हम किसी से कुछ उधार लेते हैं, भले भाई बहनों से टेम्पररी कुछ सामान ले लिया, तो हमें उसे भी लौटाना पड़ता है, वी हैव टू रिटर्न इट। लेकिन अल्लाह से जब हम कुछ मांगते हैं और वो अता करता है, तो क्या हमें उसे वो लौटाना पड़ता है? नो, वी डोंट हैव टू। और जब हम अल्लाह से मांगते हैं, तो क्या अल्लाह ताला पूरी दुनिया को बताते हैं कि इसने मुझसे क्या मांगा? तो हमारे उस सीक्रेट को, वो हमारा सीक्रेट, इट इज बिटवीन मी एंड माय अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे उस सीक्रेट को किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो राज है मेरे और मेरे अल्लाह के बीच। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अल्लाह ही वो जात है कि वो देकर खुश होता है। दुनिया वालों से जब हम मांगते हैं तो वो नाराज होते हैं, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर किससे मांगना है? किससे मांगना है? हर नमाज में हम क्या कहते हैं? बोलो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नहीं, हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं ना, आई ओनली वर्शिप यू, आई ओनली ओबे यू, व इय्याका नस्तईन, और इसीलिए मैं दुआ भी तुझी से मांगती हूँ, हम सिर्फ तुझी से दुआ मांगते हैं। तो और किसी से मांगने की हमको जरूरत नहीं, फिर वो शिर्क में शामिल हो जाता है। तो ये जो दुआ है, इसको हमारे टीचर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला का टेलीफोन नंबर है। जब चाहे अल्लाह से जो चाहे मांगो, अपनी जबान में मांगो, कुरानिक दुआओं में मांगो, सुन्नत दुआओं से मांगो, जिस जबान में चाहे मांगो, ऊंचा मांगो, दिल में मांगो। दुआ के लिए ना कोई वजू शर्त है, ना किबला रुख होना शर्त है, ना गुसल, ना पाकी शर्त है। और अल्लाह ताला की ये टेलीफोन लाइन जो है, इट इज नेवर एंगेज्ड, कभी रॉन्ग नंबर नहीं लगता, इसकी बैटरी रिचार्ज नहीं करनी पड़ती, ना इसमें कोई क्रेडिट टॉप अप करना पड़ता है। कितना अच्छा ये अल्लाह का मोबाइल नंबर हमारे पास है। जब चाहे तब हम अल्लाह से बात करें, जब चाहे तब हम अल्लाह से दुआ करें। कितना अच्छा स्पीड डायल पर है ना अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हम मांगेंगे या तो उसी वक्त मिल जाएगा, या नहीं मिला तो वो अल्लाह ताला हमारे लिए जमा करके रखेंगे, या तो उसकी वजह से मुसीबत टल जाएगी। तो आप सोचो कि कयामत के दिन हम जाएंगे और हमारी इतनी सारी जो दुआएं अल्लाह ने कबूल नहीं की है, वो सारी जो जमा करके रखी होगी, उसका इतना सारा अजर हमको मिलेगा। तो उस दिन हम सोचेंगे काश, काश कि अल्लाह मेरी दुनिया में कोई दुआ ना कबूल करता, तो कितना अच्छा होता कि मुझे आज इससे भी ज्यादा मिलता।
और दुनिया में हम क्या सोचते हैं, अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल करता, मेरी अल्लाह दुआ क्यों नहीं कबूल करता, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है, या कभी कभी हम इतने मायूस होके दुआ मांगना छोड़ देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अभी कौन से वक्त की दुआ रद्द नहीं होती, कौन से वक्त की दुआ रद्द नहीं होती, लिख लीजिए। देयर आर 7 पॉइंट्स आई हैव। नंबर 1 तहज्जुद, दैट इज रात का तीसरा हिस्सा। नंबर 2 अजान के वक्त, दैट इज अजान और इकामत के बीच। नंबर 3 हर फर्ज नमाज के बाद, नंबर 3 हर फर्ज नमाज के बाद। नंबर 4 जुमुआ के दिन, नंबर 4 जुमुआ के दिन। नंबर 5 रोजेदार की इफ्तार के वक्त। नंबर 6 सफर के हालत में। और नंबर 7 जब बारिश हो रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको खूब दुआ करने वाला बनाए। हम चलते फिरते अल्लाह से एक दुआ करते रहे कि अल्लाह तू हम पे रहम कर, या अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा। और साथ साथ में अपने वालिदैन के लिए दुआ करना ना भूले, क्योंकि हम उनके लिए क्या है, सदका जारिया है इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत पर चलते हैं। बाजी बाजी 3 Yes. पॉइंट्स थे, आपने 2 पॉइंट्स बताया है बाजी। कौन सा वाला? यू सेड कि ही रिस्पॉन्ड्स टू ऑल आवर दुआस, बट पहला है हमें फिर चाहिए कि वो लब्बैक कहे मेरी हर बात पर। दूसरा है वो ईमान लाए मुझ पर, और वो मायूस ना हो। वो तीसरा पॉइंट है। यस। बाजी एक और पॉइंट है, हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। वो लिखे ना हमने, जल्दबाज की नहीं होती, गाफिल दिल की नहीं होती, हराम खाने वाले की नहीं होती, और मायूसी करने वाले की कबूल नहीं होती। ओके, और कोई क्वेश्चंस? तो दुआ जब मांगे पूरे यकीन के साथ मांगे कि मैं किससे मांग रही हूँ, उस अल्लाह से जिसके पास नथिंग इज इम्पॉसिबल, उसके पास खजानों की कोई कमी नहीं, उसके पास रहमत की कोई कमी नहीं, वो कंजूस नहीं, वो देने में कभी कंजूसी नहीं करता, उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। तो फिर जब इस तरह सोचकर उस अल्लाह को पुकारे। नंबर 2 जब पुकारे तो अल्लाह के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नामों के साथ पुकारे कि अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है, या अल्लाह तू गफुरुर रहीम है, मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तू अर रज़्ज़ाक है, मुझे रिस्क अता कर। इस तरह अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों के साथ उसे पुकारे। या ज़ल जलाली वल इकराम सबसे जबरदस्त नाम है जिसके साथ हर दुआ कबूल होती है। तो दुआ जो है हमारे दीन का सुतून है, मोमिन का हथियार है, वो आसमान और जमीन का नूर है। दुआओं से तकदीरें भी बदल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज के अंदर भी हम दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं तो इफ्तारी के वक्त दुआ करते हैं, और हज के वक्त भी दुआएं होती है अरफात के मैदान में, है ना। और जब ज़कात देते हैं तो फिर हमारी जो है माल की वजह से हमारा जो माल पाक होता है ना, तो वो भी क्या है, एक तरह से इबादत है कि हम बिल्कुल पाक क्लेंस हो जाते हैं। और जब हम सदका देते हैं तो सदका देते वक्त हम दुआ करें या ना करें, सदका देने की वजह से हमारी मगफिरत हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी बख्शिश है, जो बख्शिश की दुआ बगैर किए, दुआ बगैर मांगे सदका करते ही हमारी मगफिरत होती है, हमारे गुनाह झड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस वाज अबाउट दुआ। तो कैसा हमको आज अल्लाह ताला का टेलीफोन नंबर मिल गया, इजंट इट, आयत 186 में। तो अल्लाह से दुआएं करना नहीं भूलेंगे।
اور ہمارے لیے فرشتے کب دعا کرتے ہیں بتاؤ؟ کون کون سی سچویشن میں ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ سحری کے وقت باجی. سحری کے وقت ہمارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. ویری گڈ. نمبر 2. ليلة القدر کے دن باجی. ویری گڈ. لیلۃ القدر کے دن کیسے ہوگا؟ وہ تو رات ہے. یس. اور سلمہ؟ جب ہم بیمار سے ملنے جائے اس کی تیمارداری کرے تب. ویری گڈ. جب ہم کسی بیمار سے ملنے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے صبح سے شام تک رحمت کی دعا کرتے ہیں. فہیم آنٹی، اور کب فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے؟ باجی دوسروں کے لیے جب ہم دعا کرتے تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ویری گڈ. جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے اسی دعا کو ہمارے لیے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. اور ہینا؟ السلام علیکم باجی. وہ جب وعلیکم ہم السلام. نماز پڑھتے ہیں اور جے نماز پہ بیٹھے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ویری گڈ. جب تک ہم نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تب تک فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے. ویری گڈ. ضیا؟ السلام علیکم باجی. سفر وعلیکم کرنے کے السلام. وقت بھی دعا مانگ سکتے، وہ بھی سفر قبول کرتے ہوتی وقت ہے. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول جی ہوتی ہے بے شک، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ فرشتے کب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ویری گڈ. اور جب ہم سحری کر رہے ہوتے اور جب ہم افطار کسی کو کراتے ہیں، یہ والی حدیث ایک بتانا رہ گئی کہ جب ہم کسی کو افطاری کراتے ہیں، افطار میں چاہے پانی پلایا یا ایک کھجور کھلا دیا، ایک کھانا کھلا دیا، تو جب ہم کسی کو افطاری کراتے ہیں نا اس وقت ہمیں اس کے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے اور فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور پھر جبرائیل امین ہمارے لیے شب قدر میں مغفرت کی دعا کریں گے اس کے لیے جو کسی کو افطاری کرائے. سبحان اللہ. دس از ویری اسپیشل. میں نے بھی پہلی بار یہ پڑھی اینڈ آئی واز میسمرائزڈ کہ کسی کو افطاری کرانے کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اس کو تو روزے کا ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، میرے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے اور شب قدر کی رات جبرائیل امین میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاؤ سویٹ. چلے نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 187. یہ بہت ہی بیوٹیفل ایک اور آیت ہے. آیت تو بہت بڑی ہے لیکن اس کا فرسٹ حصہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت 187. احل لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے احل میں ہلال ورڈ ہے، حلال، حلال کیا گیا، لکم لیے تمہارے، حلال کیا گیا لیے تمہارے، لیلۃ الصیامی رات میں، لیلۃ کہتے ہیں رات کو، الصیامی روزے کی، روزے کی رات میں، in the night of fasting. کیا حلال کیا اللہ نے؟ الرفثو بے پردہ ہونا، بے پردہ ہونا، الی نسائکم طرف تمہاری بیویوں کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی رات میں، کیونکہ روزہ تو دن میں ہوتا ہے اور مغرب کے وقت ہمارا افطار ہو جاتی ہے، اس کے بعد رات شروع ہوتی ہے، تو روزے کی رات میں اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہو سکتے ہو. You can get intimate with your wives. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اتنا بیوٹیفلی فرماتے ہیں ہن لباس لکم، وہ لباس ہے لیے تمہارے، ہن لباس لکم وہ بیویاں لباس ہے، ڈریس ہے لیے تمہارے، they are clothing for you. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم مومن مرد، لباسن the husband is the libas clothing، لہنہ لیے اس کی بیویوں کے یا بیوی کے.
So wife is a clothing for her husband and husband is a clothing for his wife. अल्हम्दुलिल्लाह. इतना पोर्शन हम लोग अभी करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. इतना ब्यूटीफुली अल्लाह ताला ने जो है डिफाइन किया है ये रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये जो रिश्ता बनाया है शौहर और बीवी का, ये इतना खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता होता है. और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इसका गवाह मैं होता हूँ. इसका गवाह, इस रिश्ते का गवाह अल्लाह ताला कैसे होते हैं? इसको क्या कहा है? उक़दतन निकाह, द नॉट ऑफ द निकाह. ये जो गिरा है ये एक एग्रीमेंट है और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर ये एग्रीमेंट किया जाता है शौहर और बीवी के बीच. और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बीवी को सुकून बनाकर भेजा है, बाय से सुकून, एज अ सोर्स ऑफ पीस, सुकून बनाकर भेजा है. तो हमें आज इस आयत में बहुत कुछ चेक करना है कि इफ आई एम अ वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, क्या मैं उसके लिए सोर्स ऑफ पीस हूँ या हमारे सिर्फ झगड़े ही होते रहते हैं. हाँ, हर चीज हमें चेक करनी है इंशाल्लाह. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये रोजे जब फर्ज किए गए तो इससे पहले जो ज्यूज और क्रिश्चियंस मदीना में मौजूद थे जो रोजा रखते थे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रोजे थे. पहली उम्मतों के लिए रोजे कैसे थे? बहुत ही स्ट्रिक्ट रोजे थे. अब उन लोगों का रोजा कैसा होता था पता है किसी को? कोई बताएगा मुझे कैसा होता था उन लोगों का रोजा? किसी को मालूम है? मैं बताती हूँ. उन लोगों का रोजा बिफोर इस्लाम, यहूद और क्रिश्चियंस का रोजा ऐसा होता था कि इफ्तार हो गई मगरिब पर, और फिर अब जब तुम सोओगे, सोने तक तुम खाना पीना खा लो या हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप हो गया तो ठीक. अब तुम सो गए ना, तो तुम्हारे सोने से फिर से तुम्हारा रोजा स्टार्ट हो गया नेक्स्ट मगरिब तक. इस तरह उनके रोजे होते थे. हमारा रोजा कैसा होता है? फजर टू मगरिब, है ना, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. उनका रोजा कैसा था? मगरिब पे इफ्तारी की और फिर जो कुछ खा लिया पी लिया और फिर जो सो गए, तो फ्रॉम योर स्लीप देयर वाज नो सहरी. हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि हम मोमिनों का और अहले किताब के रोजे में फर्क क्या है? सहरी का फर्क. वो लोग सहरी नहीं करते थे, जहां सो गए वहीं से उनका रोजा शुरू हो गया. ओके, तो देन दे हैड नो लिबर्टी ऑफ बीइंग इंटीमेट विद देयर स्पाउसेस. शौहर बीवी का जो रिलेशनशिप था वो सोहबत हलाल नहीं थी उनके लिए. सोचो आप, जब तक के रोजे होते. तो अब जो है अल्लाह ताला ने आसान कर दिया ये दीन. अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब जो इस्लाम में रोजे हैं इस उम्मत के लिए बहुत आसान कर दिए गए कि तुम्हारे लिए इन रातों में, रोजों के दौरान तो खाना पीना और शहवत, डिजायर्स, सेक्सुअल इंटीमेसी विथ योर स्पाउसेस, वो रोजों के दौरान नॉट अलाउड. लेकिन इफ्तारी के बाद रात में until the next सहरी, तो अब हलाल है ये रिलेशनशिप, अल्लाह ताला ने फरमाया. ओके, इसमें भी कुछ मसाइल है इंशाल्लाह, वो भी हम डिटेल में देखेंगे कि आपका सहरी, अगर सहरी खाने तक भी आपने गुस्ल नहीं किया है, गुस्ले जनाबत, तो सहरी खाते ही आपको गुस्ले जनाबत कर लेना है फजर की नमाज से पहले. अगर फजर की नमाज के बाद दिन में आप गुस्ल लेते हो तो फिर वो आपका फर्ज रोजा वाजिब वो आपका कबूल नहीं होता. इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब आते हैं इस पॉइंट पे कि अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरती से फरमाया कि ये क्यों अल्लाह ने हलाल किया है.
क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप अल्लाह की नजर में हलाल है और तय्यब है, पाकीज़ा है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने किस मेटाफर से इसको कंपेयर किया है? द मेटाफर यूज्ड हियर इज क्लोथिंग, लिबास। लिबास क्या करता है बताओ मुझे? लिबास तन को ढकता है, isn't it? आप कपड़े क्यों पहनते हो? It covers the naked body. इट कवर्स द नेकेड बॉडी। और नेकेड बॉडी ब्यूटीफुल लगती है या उसके ऊपर जो कपड़ों से हम उसको सजाते हैं तब वो खूबसूरत लगती है, isn't it? तो लिबास जो है नंबर 1 वो जीनत बख्शता है बॉडी को, जीनत, खूबसूरती। नंबर 2 वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है ना हमारे बॉडी से। हमारा जो ड्रेस होता है, हमारी क्लोथिंग, इट इज सो क्लोज टू योर बॉडी। लिबास और जिस्म के बीच में कुछ और नहीं होता है ना, लिबास और जिस्म के बीच में कुछ और नहीं होता। वैसे ही शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए जीनत है, खूबसूरती है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हम लोग कहते हैं दैट शी इज माई बेस्ट हाफ, शी इज माई बेटर हाफ, शी इज माई अदर हाफ, या ही इज माई अदर हाफ। तो ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और शौहर और बीवी के बीच में कोई राज की बात नहीं होती। दे कैन शेयर एवरीथिंग विथ ईच अदर, गेट इंटीमेट। और ये अल्लाह की तरफ से क्या है? हमारे लिए हलाल है। इसमें अल्लाह ताला ने सुकून भी रखा है, इसमें अल्लाह ने मोहब्बत भी डाल दी है। और ये दोनों मिलकर एक कपल, एक पर्सनालिटी बन जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, है ना, मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो। तो दोनों मिलकर एक पर्सनालिटी बन गए, है ना। और ये एक दूसरे को इज्जत भी देते हैं, एक दूसरे के इज्जत का सबब भी बनते हैं। इफ द वाइफ इज डॉक्टर देन दे से कि वो जो है ना उस डॉक्टर के हस्बैंड है। और इफ द हस्बैंड इज एन इंजीनियर देन वी से कि वो जो इंजीनियर साहब है वो उनकी बीवी साहिबा है। तो वो क्या होता है? एक दूसरे के लिए इज्जत का सबब भी बनते हैं। फिर वो राजदार होते हैं। दे हैव टू कीप द सीक्रेट्स बिटवीन ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो सीक्रेट्स होते हैं वो किसी के सामने शेयर ना करे। बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर के राज, अपने बेडरूम की बातें, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी जाकर ना बताए, ना अपनी बहन को, ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को। और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ की, अपने बेडरूम की बातें किसी के सामने शेयर ना करे। तो जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो सीक्रेट्स है वो कपड़े उसे छुपा लेता है। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐब है, कोई नुक्स है, if there is something wrong, if there is a black spot on your arms, तो आपकी जो स्लीव्स है वो उसे छुपा लेती है। वैसे ही अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो अगर उनके अंदर कोई ऐब है, नुक्स है, कोई बुराई है, किसी की कोई बुरी आदत है, तो वो भी हमें छुपाना है दूसरे लोगों से, ना कि जाकर उसका ढिंडोरा पीटना है। बिकॉज दिस इज सच अ सेक्रेड रिलेशनशिप। और इंशाल्लाह इसके बारे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑन मंडे तक आपको इंतजार करना है। अभी हम और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें सीखेंगे कि अल्लाह ताला शौहर और बीवी के बारे में क्या क्या बताते हैं, कि एक आइडियल हस्बैंड कैसा हो और एक आइडियल वाइफ कैसी हो। क्या हम सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर करें, कितने लोग सीखना चाहते हैं कि हाउ शुड अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, कि हमारी ये जो शादी है ये अल्लाह को राजी करने वाली शादी बन जाए,
یہ ہمیں جنت میں لے جانے والی شادی بن جائے. ایسی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری حدیث، پیاری پیاری باتیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آن منڈے. اور تب تک میں آپ لوگ کو ایک بات کے لیے انتظار نہیں کراؤں گی، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتی ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جو انٹیمیسی ہوتی ہے، جو صحبت جو ہوتی ہے، وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے. سبحان اللہ. So you making love to your husband making love to his wife is nothing but pure عبادت. وہ عبادت میں شمار ہے. کیسے، کیوں، یہ جاننے کے لیے انشاءاللہ ہم پھر منڈے کو ملیں گے. تب تک کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.